Good morning, students. This is third question of exercise 8.1 of quadrilateral. ये क्वेश्चन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम है और AC बाइसेक्ट एंगल A. Bisect means if this is 30, this is 30. If this is X, this must be X. Whatever, both are same. हमें बताना है कि it bisect angle C also, means this or these parts should be equal. In second we have to show ABCD is a rhombus. अब देखिए आप, जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही. अगर हम ये शो कर दें कि जो AD है वो AC के बराबर है, और जब ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये साइड इसके इक्वल होगी, वो उसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो चारों इक्वल हो जाएंगे और दिस विल बी अ रोम्बस. सो फॉर दिस फर्स्ट व्हाट वी हैव टू शो AC बाइसेक्ट एंगल C and ABCD is a parallelogram. So angle DAC, this angle is equal to angle ACB. Why? Because alternate angle. So if this one is X, this must be X. और एंगल BAC is equal to ACD. So if this one is X, that will be X. So and X or X are equal. So let's write the solution in parallelogram ABCD. Angle BAC is equal to angle BAC is equal to angle ACD, and that is equal to X. Mention here alternate interior angles because parallelogram have opposite sides equal. Same as angle BAC we have taken. Write DAC equal to DAC ACB, and the reason is same, alternate interior angle. So as these all are equal, so we can say conclusion is that mention here angle DCA equal to ACD equal to X. So this is from first or second situation. So result is what? AC bisect angle C also. So this have been proved कि वो C को भी bisect करता है. अब आप देखिए, we have to show it is a rhombus, and to show rhombus what we are going to do, that is very easy. हम क्या करने वाले हैं, आप देखो इन ट्राइंगल एडजेसेंट साइड को इक्वल शो करना है तो ABC में ही काम करते हैं. ABC में आप देखो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA एंड दैट इज इक्वल टू X. अब जब दोनों ही एंगल इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, AB साइड इक्वल टू BC. रीजन क्या होगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर थ्योरम, और उससे ये प्रूफ हो जाता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है CD इज अ rhombus. Thank you so much for watching this video. Please hit the like button. Good morning, students. This is fourth question of exercise 8.1. Question says कि ABCD is a rectangle where diagonals are equal, और AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C. ये अपन को गिवन है कि ये इसको और उसको बाइसेक्ट करता है.
तो वी हैव टू शो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हमें इसको स्क्वायर शो करना है। रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम भी होगा। सो इफ़ इट इज़ अ पैरेललोग्राम तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। तो ये अपन को गिवन है, ऐसे मान के चलना है। अब हमें इसको रोम्बस स्क्वायर शो करना है, और स्क्वायर शो करने के बाद हमें एक डायगोनल बी डी ड्रॉ करना है और बताना है कि वो एंगल बी और डी को भी बाइसेक्ट करता है। सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट वी आर these both the angles are equal, so if this one is x, this one is x. Now if this one is x, this will be equal, alternate angle, and same is here, already they have given both are equal. So in third question we have done it. तो बिल्कुल वैसे ही अब देखो आप x और ये x दोनों इक्वल हैं, तो साइड ए बी और बी सी इक्वल हो जाएंगी एडजेसेंट साइड, और जैसे ही ये इक्वल होंगी तो ये हो गया आपका क्या, स्क्वायर। बट लेट्स राइट कैसे इसका सॉल्यूशन लिखना है, दैट आई विल शो यू। सो फर्स्ट यू डू वन थिंग, you write in rectangle ABCD AC bisect angle A and angle C. This is given to us, so write for it angle BAC equal to angle ACD. These are alternate angle and they are equal. Alternate angles. Same as ADAC is equal to ACD, angle ACB, and this is also x, and same reason alternate interior angle. तो ये कहानी यहाँ, that question what we need to know, that we understood these angles are equal. अब हम लिखेंगे in triangle ABC angle BAC, this BAC equal to angle BCA equal to x. So this we have taken from here and here, और as they are equal हम लिखेंगे साइड AB इक्वल टू BC। रीज़न लिखना है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू शो इफ AB इज इक्वल टू BC, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, तो डेफिनेटली BC किसके इक्वल है, BC अपोजिट साइड AD के इक्वल है, और AB किसके इक्वल है, AB अपोजिट साइड DC के इक्वल है। तो आप देखो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गई, और जैसे ही चारों साइड इक्वल हुई तो ये क्या था, ये था रेक्टेंगल, और अब रेक्टेंगल से क्या हो गया है, ये हो गया है स्क्वायर। आई वुड लाइक टू टेल यू दिस शेप इज नाउ, so write here ABCD is a square now, and our first proof over here. Now we will move for second, और जब ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड बराबर होंगी, so draw this diagonal BD. I have drawn diagonal BD. Draw diagonal BD, और एज वी हैव ड्रॉन, जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, अब आप देखना तो इन ट्राइंगल कोई भी आप ले लो, DAB लिया मैंने, है ना। जब DAB लिया तो ये साइड इसके बराबर है क्योंकि स्क्वायर की साइड है, तो लिख लो आप AD इज इक्वल टू AB, यहाँ मेंशन कर दो साइड्स ऑफ स्क्वायर, और जब ये साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD, इसको x मान लो, तो ये भी है, या y मान लीजिए, चल x हमने ले लिया है पहले ही, तो ये भी y हो गया और ये भी y हो गया।
और ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि वो दोनों साइड से इक्वल है। सेम एज उस तरफ के ट्रायंगल्स को लेते हैं इन ट्रायंगल DCB। तो DCB में आप देखिए इन ट्रायंगल DCB, तो DCB में सेम चीज है, साइड DC किसके इक्वल है, CB के। यहाँ लिख दीजिए आप साइड्स ऑफ स्क्वायर, हमने पहले ही शो कर दिया है। तो एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब वो साइड्स इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, आर इक्वल। तो ये थ्योरम हमने लगा दिया। सो दिस विल बी, लेट्स दिस इज वन इज जेड, दिस वन इज जेड। अब आप देखो, या इन दोनों को वाई मान लो आप, जो भी, वो दोनों एंगल इक्वल हो गए, वो दोनों इक्वल हो गए। और अगर जेड भी मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो जेड वाई के बराबर होगा और वाई जेड के बराबर होगा। इसका मतलब इसको रिप्लेस करके हम वाई लिख दें और इसको भी रिप्लेस करके वाई। तो क्या लिखेंगे, सो DB बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। ये जैसे अपन इसको जेड ले रहे हैं और इसको जेड लेते हैं तो वाई और जेड इक्वल होगा ना। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि वो अल्टरनेट है, तो इसको रिप्लेस करके वाई लिखो। और ये वाई जेड भी इक्वल होगा, तो इसको, अब वाई और वाई इक्वल है, इसका मतलब वो उसको बाइसेक्ट करता है। सो थैंक यू सो मच, लेट्स राइट इट।